So beta, Bismillah Rahman Rahim. Yesterday we revised trigonometry in detail. Now today we are going to practice all the recent past paper cases of 0580 syllabus and 4024 syllabus. Okay? I have taken the question from February March attempt 2024 and October November 2023, and in this 4024 I have taken the questions from October November 2023 only. So that is the reason वर्कशीट काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर इसलिए मैंने ये एक ही दो सेशंस लिए हैं खाली. ठीक है. Now look at the question very carefully. Now they say that A, B, C, D are points on circle, and ADX and BCX they are straight lines. So BCX is a straight line. Okay. And ADX is also a straight line. Okay, now they say that angle BAD is X. Okay, and angle DCX is equals to Y. Okay, explain why X is equals to Y. Beta, we know this very well that we have a theorem on a cyclic quadrilateral, that this is a cyclic quadrilateral in front of you. You can see that very clearly that this is a cyclic quadrilateral. So what I'm going to do is I'm going to extract this outside just for the sake of better understanding. AD, and that is C, and this point is B, and let me connect this one with this one. So this point is X, and there is an angle here which is Y. Beta, I know that very clearly that in a cyclic quadrilateral, in cyclic chord, beta, please turn off your mics. In cyclic chords, opposite angle sum is equals to 180. For example, if whatever this angle, for example, if this angle is Z, so for example, Z would be 180 minus X already. Yes or no? And at the same time, Z is also equals to 180 minus Y. Is this clear or not? Because it implies two theorems here, that this plus this is also 180 and this plus this is also 180. So it means that X is equals to Y. So, so it means X is equals to Y. And this is also something like an alternate segment theorem as well. This is also exterior angle made with a line extension, and this is interior angle. So that second can be X is equals to Y because of alternate segment theorem. Proceeding. Now show that triangle ABX is similar to triangle CDX. Okay, we need to show this, that triangle ABX is similar to triangle CDX. So first of all, triangle ABX, I'm going to draw this one here. A, B, and that is सर G beta. सर हमने दोनों जो है स्टेटमेंट्स देनी है या एक देनी है? मैंने दोनों आपको दे दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी दे दो, दोनों करेक्ट हैं 2 मार्क्स के लिए. उन्होंने कहा लेकिन ना ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक. ओके, यस सर, ठीक है. यस सर, So okay, then they say that triangle CDX. So C to D and D to X. Okay, so let me make C D and this is X. Okay, now we know this already, that this angle is X. So I can also mark this angle as also X. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Because we proved above, it is proved above that X is equals to Y. So now we know this already, that angle X is the common angle. Agree? This angle is common. If it is Yes, A, so sir. that is also A. So beta, X is equals to Y, same angle, same angle. B is equals to D. A is equals to A, common angle of both the triangles. And angle B, which is angle ABX, it is equals to angle CDX because of
sum of triangle is equals to 180 degree, is equals to 180 degree. That is for 2 marks. If angles are same, it means that both the triangles are similar to each other. Proceeding. But now they say that A to D is 15. Okay. So A to D is 15. So first of all, I have to mark the values, and D to X is 9. So first of all, A to D is 15. So that region is 15. D to X is 9. So D to X is 9 centimeter. So 15 plus 9 would be 24 centimeter would be AX, and DX is 9 centimeter, which is given in the here. And CX is equals to 12. C to X is equals to 12. Okay, now the examiner is saying find BC. First of all, mark the corresponding sides. Okay, find BC. So BC is the requirement here. So we need to find out that what is the requirement of here. We need to find out this little part, yes or no. So first of all, we need to find out BX. So let's find out B to X first of all. And we have CX already available. Agree? Let's find out BX. So first of all, beta, we know this that we should be knowing the corresponding sides. Okay, angle A is facing this side. So this side is corresponding to this one. Okay. Okay, angle X is facing 12. So this side is corresponding to this side. And this is the third side of the triangle, which is this one. Okay. So now we are done with the corresponding side mentioned. So BC is unknown. Okay. So first of all, we need to find out finding what? Finding BX. So BX would be B to X would be the corresponding side of BX is 9. Okay. And which two sides are available? The third ones, the 24 and 12. So BX is from the triangle, first triangle. So I have to write 24 here. And the 3 is the 12 here. So BX सर is यहाँ पर equals to, शेप कंफ्यूज हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। बेटा कोई भी नहीं है इसमें, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, आपने ये सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करनी थी। ठीक है। एंगल ए जी के सामने ये साइड है ना, जी सर। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल ए ये ही है। यस सर। एंगल एक्स के सामने देखो मैंने 2 डैशेस लगाए हैं, यही समझ आइए। यस सर। और यहाँ पे भी एंगल एक्स के सामने मैंने 2 डैशेस लगाए हैं। यस सर। तो ऑटोमेटिकली इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली हो गई, फिर 3 डैशेस वाली। करेक्ट। यस सर। तो बस अब रेशो लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो बी एक्स की करस्पॉन्डिंग है 9। सो बी एक्स डिवाइडेड बाई 9, एंड देन 24 डिवाइडेड बाई 12। सो 24 डिवाइडेड बाई 12 multiply by 9. So 24 divided by 12 is equals to 2, and 2 times 9 is 18 18। centimeter. Okay, so we need to find out BC. So BC is equals to, beta BC is equals to BX minus CX. So BX minus CX. So BX is 18 and CX is given in the question, which is 12. So that is equals to 6 centimeter is the answer. Understood everybody? Understood everybody or not? जी Yes or सर। no? Okay. Now, beta, now the examiner is saying complete the statement. The area of the triangle ABX ratio area of the triangle CDX. So first of all, we need to find out that what are the ratios. So look at the both the triangles. So we got this BX as 18 and CX is 12. This is 24 and this is 9. So if I look at the ratios, so 24 divided by 9 is how much? I can cancel it or not? I can cancel in table 3. Yes or no? This is 8 threes are 24, and 3 threes are 9. Yes or no? 8 divided by 3. Yes or no? Look यस at सर। the look at the another corresponding side. It is 18 divided by 18. Oh, sorry. Wait a minute. Apologies from my side. I plotted the wrong one here. Just give me a second. Let me just make this separation here. Ratio of enlargement. So 24 is corresponding to 12. It is
2 by 1. Agree? Now check. Bx is corresponding to dx, which is 18 divided by 9, which is also 2 by 1. Agree or not? Yes or no? And you can see the last one as well. Last one is not available, so we know that the ratio is 2:1. So this is ratio of length. So that is 2:1. So this is area. So area is a square quantity. So taking square on both sides, so that would be 4:1 would be the area ratio between these two triangles. Got it? This is for length ratio, and area is a square quantity. Area is a square quantity, square quantity. So take square. So take square. Understood everybody or not? So Yes, this is sir. from the 4 to February March 2024 paper. Okay. I told you that you will get 30 to 35 marks in both the papers. Check. 2 plus 2 is 4, plus 3 is 7, plus 1 is 8, and this question is also from this paper. So 7 plus 3 is 10, 10 plus 3 is 13, 13 plus 3 is how much? 13 plus 3 is 16. 16. 16 plus 2 is 18 marks. Agree? 18 plus 2 Uh, is 20, 20. 22. Approximately 22 marks question were in February March paper. All right, look at the question, please. The diagram shows a triangle. It's another question, and this is also from the February March paper, paper 4. Okay, the diagram shows a triangle ABC with AB is 17.2. Okay, ABC is 54 and angle ACB is to calculate AC. Okay, what is the demand of the question? A to C is the demand of the question. Okay, okay, I can A to C is the demand of the question. Now I can see two triangles. So I'm gonna separate the triangles like this. Okay, very good. So that would be B, that would be A, that would be C. I'm not drawing this one, the another little triangle. Let's draw that triangle here. Okay, so this angle is 54. Let me write name A, B, M. This is 17.2. And M to C is this point A, M to C is 12.8. M to C is how much? It is 12.8. Yes or no? M to C Yes, sir. is M to C is 12.8. So M to C is also 12.8. So first of all, I have to take this triangle from outside. So when I look at the question in the beginning, I can see that the demand of the question is this one, but there is a problem here that I have to proceed the question in that manner so that I can easily fulfill the requirement of the question. Got it, everybody, or not? So first of all, I have to look at the question very carefully. I can see that in this question, AC is my requirement. But if I take triangle AMB, oh sorry, I plotted the wrong names as well. Wait a minute. Triangle AM, and that is B. In this triangle, beta 12.8 is given. Agree? And AMC, sir. only 68 is given. सर Yes, ये मैं ए नाम एम सी हाँ, वाला ट्रायंगल है सर, मेरे ख्याल से ठीक है ए एम ठीक सी है है। ठीक है ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने नाम नाम चेंज कर दिया। इस ट्राइंगल में भी बेटा आई हैव ओनली टू साइड्स अवेलेबल। एग्री? और ये साथ वाले ट्राइंगल में भी आई हैव ओनली टू साइड्स अवेलेबल। एग्री? Yes, एग्री sir. और नॉट? सो बेटा व्हाट इफ आई टेक द ट्राइंगल ABC straight away? Got it? Yes, sir. तो ट्राइंगल सर ABC नहीं होगा ना सर जी, नहीं होगा ना चेक करते हैं ना बेटा। सर। वो 12.8 तो सिर्फ एम से सी तक है ना सर जी, हो बी ना? से हमारा क्या है? ABC, बेटा ये एंगल है 54, ये एंगल है 68, ये एंगल है 17.2। कैन आई गेट दिस थर्ड एंगल? 180 Yes, sir. minus 52 minus 54 68 सर, 54 is 54 equals है to, सर, oh sorry, 54। thanks, this angle is 54। okay, सर बस so 58 18, आएगा ना? अच्छा 58 आएगा जी, thank you। okay, now the demand of the question is find AC। so beta let's try the question with the sine rule। this is small b, this is small c, sine c is available, so b divided by sine b
is equals to C divided by sine C. So B is AC divided by sine B is sine 54. Small c is 17.2 and sine C would be sine 68. Now this sine 54 will go on the right hand side. So AC is equals to 17.2 multiplied by sine 54 divided by sine 68. So what is the answer बेटा? कैलकुलेटर अगर किसी ने किया तो बता दो, टाइम बच जाएगा बेटा। प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल साथ साथ आप लोग खुद भी कर ले करें तो ज़रा टाइम बच जाएगा हमारा। Divided by sine 68, close the bracket. So the answer is 15.00. So I will write here 15.0. Why? Three significant figure. It will show the examiner that this answer is rounded off. Correct? So this is 15.0. Once I'm done, I have to plot the value as well. Okay, now they say that beta m lies on BC such that M to C is 12.8. We can see that calculate A to M. We need to calculate AM now. So fita, I know that I have the triangle available with me. Agree, which is AM, this one triangle. So beta, I have to evaluate beta. I have AC value now, so I can plot it here 15.0. Yes or no? So AM would be my small c. So you can see that you have small m here and you have small a here. Sine c, cos c is available. So beta, I have to proceed the question with the cosine rule now. So this diagram is for part B. Part B. Okay. So I need to find out c square. So c square is equals to m square plus a square minus 2ma cos of c. That is the cosine rule. Understood everybody or not, yaar? Yes, sir. C square is am square. So m square would be what? 12.8. No, sorry, 15 square. 15 square plus 12.8 square minus 2 into m is 15 into 12.8 into cos of what? Cos of 68. Beta, I don't need am square, so I will take square root straight away here. So square root everything in the calculator would be the answer. So I will have to put square root first, then 15 square plus 12.8 square. Beta, how many participants are there in the class right now? Can anyone tell me? I can't see the screen. 15.65 Okay, आपने आंसर निकाल लिया मिनाइल? जी सर कॉस बेटा क्लास में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जरा मुझे बता दे एक बच्चा। 24, sir. 25 20 25 मजा नहीं आया। 15.65. So the answer would be till three significant figure. It is 15.7. बेटा आई ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट सही सुने, ये उनके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं, आईजीसीएसई वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। बेटा फिजिक्स में आपने पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होती है एंड इसकी वजह से रैड बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। सो ए टू बी सी एक स्ट्रेट लाइन में हिट करने लगा हूँ। आप लोग जरा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा बेटा प्लीज। अच्छा, ए एम जो आया है 15.7 वो भी लिख देंगे। अच्छा, ए एम इज 15.7, ये भी लिख देंगे। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। सो ए टू बी सी वुड बी दिस डिस्टेंस, yes or no, Manahil? यस सर So this rat will work for me. I can find out by using this rat. So let me extract this rat outside. So this rat is right here. So this is point A. This is shortest distance, for example, X, and that would be C. This angle was given, which was 68. This angle will obviously 90, and this is 15. Agree? So now right angle triangle, name sides. Beta, side opposite to the 90 is called hypotenuse and side opposite to the angle is called perpendicular. We have some people have shown curly brown hair through proper brushing. How to select the formula? Mera beta, I have angle. So CT cancel. I have to take H as well because H is also available. I need to find out P. So that is my requirement. So I got the formula. So sine of 68 is equals to perpendicular, which is AX, shortest distance, and hypotenuse is 15.
So sine 68 multiplied by 15 is equals to ax. So first of all, beta, remember that when I wrote sine 68, I have to close the bracket, then multiply by 15. So the answer would be 13.9. 13.9. 13.9 is the final answer. Thank you so much. All right. Okay, beta, this question is from speed time graph. So beta, they say that calculate the speed time graph shows information about a bus journey. So calculate the distance traveled by the bus. So beta, total distance would be area under the graph. Area under the graph. So I can see that the graph is in the shape of a trapezium. Do you agree with me? Yes, sir. Do you agree with me? It's a trapezium. So that is the reason. Mera beta, this is my L1 and this is my L2, the parallel sides. Beta, L2 according to the calculation is 190 and L1 would be from 20 to 140. This is L1. That would be 120 and the height of the trapezium is 15. So the formula is area of the trapezium is 1 by 2 multiplied by sum of parallel sides times height. Write the formula appropriately. Sum of parallel sides means 120 plus 190 times height of the trapezium, which is 15. So beta 0.5 in place of 1 by 2 multiply by G beta 2325. 120 plus 190. ठीक है, मैं ज़्यादा एक भी लेता हूँ, मैंने कर भी लिया अब. Multiply by 15. So the answer is 2325 meters is the answer. अगर एग्जामिनर कहे कि किलोमीटर में लिखो तो डिवाइड बाय 1000 कर देना तो किलोमीटर में आ जाएगा आंसर 2.325 किलोमीटर. एग्जामिनर चेक कर सकता है. ओके, क्वेश्चन 20 ये पेपर 2 में आया था फरवरी मार्च 2024 के. एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी. So beta, it's not a right angle triangle, so there is no height. You can see that no height is available. So I have to proceed with not a right angle. Product of two sides multiplied by sine included. So area of the triangle would be 1 by 2 product of two sides multiply by sine included. Please calculator कर लें जरा. Sine 23. So the answer would be 5.36. 5.366 के बाद क्या है बेटा, कोई और नंबर तो नहीं है? 08 है सर. ठीक है, तो 5.363 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया. अच्छा, ऑन द ग्राफ बेटा आईजीसीएसई वाले सुने, अच्छा जीसी वाले ओ लेवल्स वाले नहीं सुनेंगे. ठीक है जी, हमने स्केच करना है ग्राफ ऑफ कॉस एक्स. सो मेरा बेटा यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा 90 और इसी के सेंटर में मैं प्लॉट करूंगा 270. कैलकुलेटर पे आ जाओ, लिखो मेरा बेटा कॉस 0 इक्वल दबाओ 1 आता है तो ये क्रॉस होगा. फिर आप लिखो कॉस 90, 90 लिखो 0 आता है. तो फिर लिखो कॉस 180, -1 आता है तो -1 कुछ यहाँ पे होगा. फिर लिखो कॉस 270. इसी तरह करना है. ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें रहमान, ये नंबर ज़ाया नहीं करने. 0. जी सर. फिर आता है बेटा कॉस 360, कॉस 360 +1, +1 आ गया बेटा इधर. ठीक है. ओके, अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया था कल कि यूज बनाने हैं, तो एक यू बनेगा इधर और एक यू यहाँ से इधर जाएगा और ये आधा यू इधर बनेगा. ये याद कर लो. ठीक है भाई. ओके, अब ये है इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन. अब्दुल्ला अब्दुल्ला चौधरी बेटा, आप मुझसे पूछ रहे थे कि cos x इज इक्वल्स टू दिस, तो कहते हैं फ्रॉम 0 to 360 दो आंसर बताने हैं. सो x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.294. ओ लेवल्स वाले आप भी सुन सकते हो, तो शिफ्ट cos इनवर्स, तो आंसर होगा 0.294 ब्रैकेट क्लोज. आंसर इक्वल 72.9 आ रहा है मेरा बेटा. तो cos का दूसरा आंसर क्या होगा, आपने ये प्लस बनाना 1 होता into है. 72.9. ठीक है जी. तो यहाँ पे आता है ऑल, यहाँ पे आता है साइन, यहाँ पे आता है टैन, यहाँ पे आता है कॉस. मैंने कल आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे आएगा थीटा, यहाँ पे आएगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आएगा 180 प्लस थीटा और यहाँ पे आएगा बेटा 360 माइनस थीटा. सो कॉस इज पॉजिटिव. कॉस का पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, एक पहले यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है. तो पहले वाला आंसर मुझे मिल चुका है, दूसरा आंसर मुझे मिलेगा 360 माइनस थीटा करके -72.9. तो 360 माइनस 70, 360 माइनस आंसर
So 287.0. So 287.0 is the answer for the second. So I have to write this here. 72.9 और x2 होगा बेटा 287.0 till 1 dp. सर वो So 2 180 प्लस marks. 72.9 होगा तो वो साइन के लिए होता है 180 प्लस वो tan के लिए होता है बेटा. 72.9 All प्लस positive, sin positive, tan positive. अच्छा सर अच्छा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला है, किसी दिन अलजबरा में करा दूंगा, अभी हम ये पढ़ रहे हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें बेटा. अब ये पेपर, ये कौन सा पेपर है बेटा? ये 402422 अक्टूबर नवंबर 23 ओ लेवल्स वालों का पेपर है. आईजी वालों के लिए बिल्कुल अनसीन क्वेश्चन होगा तो अच्छा है, देख लें बेटा. बेटा ये कहता है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड. बेटा ये रेक्टेंगल है तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये भी 210 होगा और ये भी 450 होगा और ये तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं ये 90 होंगे. जी क्लियर है जी. खाली फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के मैंने इतना कुछ लिख लिया है. फिर कहता है ए इज ड्यू साउथ ऑफ ए. तो साउथ ऑफ ए का मतलब ये है कि यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट आया है, मतलब ये नॉर्थ है तो ये साउथ है. इज दिस क्लियर? कहता है कि ए टू बी इज 450, बी टू सी इज 220. मार्था वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5.2 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट टाइम मार्था टेक्स टू वॉक अराउंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर कहते हैं बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स को. किसे कहते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स तो बेटा 450 प्लस 450 प्लस 210 प्लस 210, ये डिस्टेंस है. कितना आता है टोटल जरा बताइएगा मुझे. 900 प्लस 400 1300 420 1320 क्या आ रहा है 1320 बेटा? ये 1320 मीटर में लिखा हुआ है और स्पीड किलोमीटर में है तो ये आएगा 1.32 किलोमीटर. जी क्लियर है सबको? अब कहता है गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट. हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो स्पीड फिजिक्स में पड़ी होगी. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड है मेरा बेटा 5.2 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस है हमारे पास 1.32 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास x आवर्स. अब x फाइंड आउट करने हैं तो x उधर जाएंगे और वो इधर आ जाएंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज बना लेते हैं छोटा सा. सो ये आ जाएगा बेटा x आवर इज इक्वल्स टू 1.32 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5.2 किलोमीटर पर आवर. बेटा किलोमीटर किलोमीटर कट गया, मतलब डिस्टेंस की कहानी खत्म. अब कैलकुलेटर पे जरा पंच करेंगे. 1.32 डिवाइडेड बाय 5.2. आंसर आ रहा है मेरे पास ये. मैं जरा इसको ऐसा करता हूँ कि टाइम बटन दबा देता हूँ. ईएनजी के ऊपर देखें टाइम बटन, जरा देखें. ईएनजी के ऊपर टाइम बटन नजर आ रहा है बेटा? सो एक्स आवर्स का मतलब ये है कि इट इज 0 आवर्स 15 मिनट और 13.8 सेकेंड्स. 13.8 सेकेंड्स. तो नियरेस्ट मिनट बेटा 15 मिनट ही बनता है. ठीक है बेटा. सो द आंसर इज 15 मिनट्स. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी सर Yes, बेटा sir. लर्निंग पार्ट में ये याद रखना है कि टाइम बटन का पता होना चाहिए. देखो 0 के ऊपर गोला बना हुआ है, ये सर्कल है तो इस सर्कल का मतलब है आवर्स. 15 के ऊपर एक कॉमा है, इस एक कॉमे का मतलब होता है मिनट. और 85 के ऊपर देखिए डबल सेकंड, डबल कॉमा लगा है, ये मतलब है कि 13.85 सेकेंड्स. ठीक है. कहता है शो दैट द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए इज 245. इसका मतलब क्या? ये इसका मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसा होता है. लुक एट डी फ्रॉम ए. फ्रॉम ए. तो मैं जरा ए पे खड़े होके आंख बना लूं अपनी. आंख मैंने बना ली. ठीक है जी. मैंने डी को देखना है तो डी को देखने के लिए मुझे चाहिए ये एंगल. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर हमने ये शो करना है कि ये कितना आता है हमें. मेरा बेटा ये पहले से पता है. वी नो दिस ऑलरेडी. क्या नाम है अब्दुल्ला? दैट दिस इज अ सेमी सर्कल. ये एंगल एट अ लाइन है तो ये 180 है. एग्री? तो दिस इज द एंगल एक्स वी नीड टू फाइंड आउट. हमें इस एंगल एक्स को फाइंड आउट करना है और ये एंगल एक्स रैट के जरिए सॉल्व हो जाएगा. ए डी और ये नाम लिखता हूँ ए डी और सी. बेटा ए टू डी 210 है. ठीक है. ये 450 है. एंगल डी 90 है. हमें ये एंगल निकालना है. सो इस एंगल को निकालने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री करेंगे. राइट एंगल के सामने द साइड इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑटोमेटिकली द बेस. अगेन सिंग द सॉन्ग सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. Okay, angle is unknown, so angle is unknown. Okay, perpendicular and base is given, so we have the tan formula. So tangent x is equals to perpendicular divided by base 450 divided by 210.
So x is equals to tangent inverse of 450 divided by 210. क्या आता है बेटा x, जरा मुझे बताइएगा 65 क्या आ रहा है बेटा? 65 एग्जैक्ट 65 है। सर वो राउंड ऑफ की 64.98 था। तो 210 किया, एक मिनट सफर करें जरा। 89.91 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा बेटा, मेरे पास तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। ओ सॉरी, मेरी गलती है, अपॉलोजीज, मेरी गलती है, मैंने कैलकुलेटर में प्लस लगा दिया था। शिफ्ट tan इनवर्स फ्रैक्शन 450 डिवाइडेड बाय 210 ब्रैकेट क्लोज सर आपने इक्वल। फ्रैक्शन कैसे लिया? वो बेटा, वो फ्रैक्शन का बटन देखो ना, ये क्या तीसरा बटन OPTN के नीचे फ्रैक्शन क्या बनी हुई है, तो ये 64.98 आ रहा है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। तो 64.98, तो ये बनता है बेटा 65.0। समझ आ गई बेटा? सो नाउ वी नो दैट द बेरिंग क्या है जी, 180 प्लस एक्स। तो 180 प्लस एक्स हम निकाल चुके हैं, तो 180 प्लस 65, तो क्या ये 245 आ रही है? अब इंग्लिश में एग्जामिनर ने कहा था शो करो, हम लिख देंगे इट इज शोन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सर जी शॉन लिखने? जी लिख देंगे ना यार, कोई मसला है तुम्हें? नो सर। लुक एट द पार्ट बी बेटा, ये पार्ट बी कुछ वैसा ही है जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। ट्राई खुद करना चाहेंगे? जी सर। ये पार्ट बी बेटा वैसा ही है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये ऊपर वो क्वेश्चन नजर आया, ये वाला, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिजाइन हुआ है बाकी। जी कोई प्रॉब्लम है नो सर। बेटा? शुड आई प्रोसीड और नॉट? ट्राई दिस बाय योर ओन, ट्राई दिस बाय योर ओन प्रोसीडिंग। ऑलराइट बेटा, ये केस पेपर में जरूर आ रहा होता है आजकल। कहता है बेटा द डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस। बेटा बेटा जब ये स्क्वायर है ना नीचे, तो ये तो डिबेट ओवर हो जानी चाहिए कि स्क्वायर की ऑल लेंथ्स आर सेम। यस और नो? यस और नो? यस जी सर। सर जी। क्या ये डिबेट क्लियर है? यस ओके। सर। जी कहते हैं द सर। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 98 सेंटीमीटर। तो बेटा इफ दिस इज x, दैट इज x, तो दैट इज मीन दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट पी क्यू। पहले x निकालना पड़ेगा हमें। सो x निकालने के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम, इन्होंने इसीलिए दिया है 98 इज इक्वल टू लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, और हाइट 8 है। सो 98 is equals to 8x square divided by 8 on both sides। 8 कैंसिल करो, x square is equals to 98 divided by 8 क्या आता है बेटा? 12.25 12.25। now take square root on both sides, square root करो 3.5। जी। 3.5 3.5, 3.5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ x। तो मेरा बेटा ये 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया। अब पी क्यू निकालने के लिए मेरा बेटा याद रखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो इसके अंदर मौजूद है। अब वो कैसे है जरा देखें, प्लीज ऑब्जर्व करें। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। डू यू एग्री विद मी और नॉट? So यस सर। let's find out the hypotenuse with these two x। तो हम लोग यहाँ पे hypotenuse निकालेंगे। So हम hypotenuse कैसे निकालेंगे? We have 2x। तो हमारे पास ये आ चुका है 3.5, ये भी है 3.5। Let's find out this hypotenuse by using Pythagoras theorem। ठीक है? That h is equals h square is equals to 3.5 square plus 3.5 square। So h is equals to square root of this side। बेटा क्या आ रही है hypotenuse? सर ये थोड़ा गलत नहीं हो गया सर? बताइए ना। सर ये यो 9 तो 8 है ना सर जी, 8 सेंटीमीटर 4.9 नहीं। बेटा क्या 8 है? सर ये कह रहे परपेंडिकुलर तो 8 है। मेरा बेटा तुम देखो, ये मैंने एच निकालनी है, एच तो ये नीचे वाले ट्रायंगल की है यार, ये जो जमीन पे लेटा हुआ है। ओके 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 सर हमने सर तो पी ओके। क्यू वाला ट्रायंगल नहीं निकालना। बेटा पी क्यू और आर तो है ही नहीं सची। यहाँ पे अगर आर बना लूँ ना, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यस सर। ट्राइंगल अगर हम लोग बना लें, तो पी क्यू आर में तो हमारे पास सिर्फ 8 है, नीचे तो नीचे भी नहीं है और पी क्यू भी नहीं है। जी सर।
अब ये जमीन पे वाले जमीन के ट्राइंगल की वजह से वी विल गेट पी आर। समझ आई? तो ये क्या आंसर आया है? 4.95. 12.95 सेंटीमीटर इज द सर आंसर फॉर। 4.9 4.95 सर जी। 4.9 ओके जी 4.95। सॉरी मैंने जरा लैग कर गई थी आवाज। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट पी क्यू। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बाय निकालेंगे, समझ आइए, जिसमें पी क्यू है और ये हो गया आर। तो ये 8 आया है, तो पी आर भी क्वेश्चन में नहीं था, हमने खुद निकाला है 4.95। अब वो कहता है पी क्यू, फिर pythagoras थ्योरम लगेगा। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 4.95 स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर बेटा? 4 मार्क्स थे इसके। 9.4. व्हाट? 9.4 4 के बाद क्या है? 9.4. सर 07 तो जीरो से बेटा ये यही तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग नंबर यहीं पे तो लूज करेंगे। 9.41 सर जी। 8 स्क्वायर प्लस 4.95 4.95 स्क्वायर। बेटा द आंसर इज 9। मैं आंसर पहले लिख लिया करो यहाँ पे पेपर में। 9.407। आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर देना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज थर्ड। आफ्टर 0 इट्स 7, तो दिस 0 विल बिकम 1। सो 9.41 इज द आंसर। इज दिस क्लियर? जी 2-1 सर जी। October November 23। Okay. This question was in 058043 October November 23। Circles और triangle दोनों दिए हैं। Find the size of one interior angle of a regular n-sided polygon। तो 1 निकालना है, तो formula would be n minus 2 multiplied by 180 divided by n। So 10 minus 2 multiplied by 180 divided by 10। तो ये कितना आता है बेटा, जरा बताओ ना। 144 144 degree is the answer for the regular 10-sided decagon। All right. Okay, G. Please pay attention. Look at this circle. The point A, B, C, D. First of all, we can see two parallel lines. तो parallel lines को पहले shade कर लेते हैं, ठीक है? Okay. आनिया, पहले parallel lines की मदद से देखना है कि क्या हो सकता है। बेटा ये जहाँ पे ये W है, तो can I say that this is also W? Yes or no? यस सर। Okay. Now what I'm gonna do is X I'm equal gonna... 20. जी बेटा? X would be 20 degree. X would be what? 20 degree. 20 सबर ना यार, डिग्री। parallel lines आगे ना भागो मुझसे। Okay. Now you can see that there are two triangles inside. Yes or no? This is one triangle and this is alternate segment theorem with a 20 degree. Agree? So if this angle is 20 degree, so this angle is also 20 degree, and we can see that this is also सर जी angle in a same W भी segment. 20 है सर फिर। So W is also 20 degree. So X is 20 and W is 20. Let me write here. Okay. Okay. Now the examiner is saying, okay, if this is 20, so that little piece would also be 20. Do you agree with me or not? Yes. Okay. So let me mark, let me erase this W now. Okay, now that's fine. Okay. Now, beta, the amount of the question is X, Y, and Z. Let's find out Y and Z as well. Beta, can you see that this is also a cyclic chord as well? Yes or no? Yes or no? Beta, yes or no? यस सर। Okay, beta, can I say that this angle would be, can I say that this angle, complete angle would be 90 degree? I'm talking about this angle, सर angle in a semicircle. Yes or no? सर तो ये z Okay. ढूंढ सकते हैं। Okay, I इजी cannot है। say that. I cannot say that. Why? There is a reason. Beta, EB is not a diameter. ठीक है? EB diameter नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता. ठीक है? Is this clear? Yes, sir. जी सर। Okay. चलें आराम से बैठ के देखते हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं. Okay. Now they say that FG is tangent to the circle at point D. Okay, एक tangent of the circle at point D है. So first of all, we need to find out angles which are involved inside. Got it? Got it? Okay. यस सर। So beta, you can see that this is also alternate segment theorem, that if this is 25, so opposite interior angle is 25. Yes or no? यस सर सर।
Okay, now it's time to find out that what is the total angle here. So ईबी how I can... डायमीटर क्यों नहीं है? जी बेटा, ईबी डायमीटर क्यों नहीं है? बेटा ना यहाँ पे लिखा हुआ है और ना यहाँ पे सेंटर में ओ मार्क है, तो हम नहीं कह सकते कि ईबी डायमीटर है। समझ आई है? यस सर। गॉट इट और नॉट? जी सर, समझ आ गई। चलो शुक्र है भाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम्स में आप एक चीज़ ज़रा नोट करें कि मैं अभी इसके अंदर से ये सारी लाइंस इरेज करने वाला हूँ, ताकि क्योंकि मैं एक और चीज़ समझाने वाला हूँ, क्योंकि अभी ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो ये मैं सारी लाइंस में इरेज कर रहा हूँ। ओके, इरेज हो गई बेटा सब। अब ज़रा एक चीज़ नोट करें सर बेटा, इज दिस अ ट्राइंगल और नॉट? यस सर, यस और नो? 90 डिग्री ट्रायंगल। यस और नो? बेटा किसने कहा कि 90 डिग्री ट्राइंगल है? हु सेड दैट ई बी इज अ डायमीटर? जी वो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। किधर बन रहा है भाई? किसने कहा कि 90 बनेगा? ना रेडियस है ना ई बी डायमीटर है। Sir, Now see, सर this angle is 45, 20 plus 25. Yes or no? जी Don't सर। you think that this is Z, opposite interior? यस Yes or सर। no? So angle Z would be equals to 25 plus 20, which is equals to 45 45। degree. So alternate segment theorem यहाँ पे लिख भी देता हूँ, segment theorem. All right, angle Z आ चुका है, which is 45. अब सिर्फ और सिर्फ Y रहता है। क्या रहता है बेटा? क्या रहता है बेटा? वाई। ओके, सो वाई की खातिर हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ये टोटल एंगल है कितना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर एग्री और नॉट? 180 नहीं होगा सर, 180। 180 जी, टोटल 180 सर। टोटल कितना है? 180 सर जी। बिल्कुल, और ये सबसे आसान तरीका सामने ही विजिबल है। ए सी डी ट्राइंगल नजर आ रहा है सबको? ये 75 है, ये 25 है, और ये एंगल है हमारे पास y प्लस 20। क्या ये सब हमारे पास 180 के बराबर नहीं आएंगे? जी सर, आएंगे आएंगे So बिल्कुल आएंगे। 25 plus 75 plus y plus 20 is equals to 180. So y is equals to 180 minus all, तो इनको ऐड कर लें। 75 plus 25 is 100, 120 तो minus 120, so y is equals to 60 degree. Y is equals to what? 60 डिग्री। So y is 60 and z was 45. Understood everybody? जी सर। All right, this question is from IGCSE 4-3 October सर November ये हमने सिर्फ 2-3. ट्रायंगल का टोटल लिया था ना। जी जी, ये ट्राइंगल एडीसी मैंने बनाया है ना आपकी खातिर यहाँ पे। जी सर। अच्छा, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द वैल्यूज। तो हमें एक्स की जगह पर डालना पड़ेगा 45। सो 3 cos 2 मल्टीप्लाई बाय 45, ब्रैकेट क्लोज, सो द आंसर इज 0। लेट मी चेक विद द 60 नाउ। सर 45 क्यों? ये ब्लैंक था ना, ओ अच्छा अच्छा। तो 45 2 की बजाय अब मैं 45 की जगह पे अब 60 लिख दूंगा। सो द आंसर इज -3/2, मतलब -1.5। अब तो ये 80 भी लिख 80 देंगे। था। अब 80 लिख देंगे, -2.81, सर ये माइनस टू क्वेश्चन तो वो पॉइंट टेबल पर नहीं होता ना, क्या कैलकुलेटर चीज? में वो जो टेबल होता है। बेटा होता है, क्यों नहीं होता, उस पे भी होता है, लेकिन बस वो ही बात है कि ये आसान आसान है ना, 3 वैल्यूज थी। जी सर। 3 मार्क्स। ओके, आपको कॉस ग्राफ का पता है? कॉस ग्राफ कैसे बनता है? अभी इसको प्लॉट करना है खाली। 0 is 3, so 0 is 3, 10 is 2.8, 10 is 2.8, okay, 20 is 2.3, 20 is 2.3, so 2.2, 2.3, 30 is 1.5, 1.5 would be the half here। मनाइल सुन रही हो कि नहीं? 40 is 0.5, जी 45 is 0, that is 45, 50 is -0.5, so -0.5 would be here, 60 is -1.5, negative आधा यू 1.5, बनेगा था। 70 is -2.3, 70 is -2.3, इतना अर्ली नहीं बता सकते आप। 80 is -2.82, 2.8, and that is 2.82, and 90 would be -3, so that would be -3, तो ये कोई u नहीं है। आधा यू बोले सर जी मैंने।
Okay, so let's check. सर जी सुन रहा हूँ बेटा। अगर हमारा एक पॉइंट थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाए तो उसके मार्क्स कटेंगे? बेटा कटेंगे, लेकिन पॉइंट बीइंग इज कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मिसप्लेस हुआ है। 4 मार्क्स हो गए। अच्छा, यूज योर ग्राफ। जब भी देखो यूज योर ग्राफ तो क्वेश्चन पहले लिख लो। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 3 cos तो 2x। जिसमें तो आपको सो जीरो मिलते हैं। तो कैन आई से दैट दिस इज y? सो y इज इक्वल टू -2। सो मेरा बेटा y इज इक्वल टू -2 इज व्हाट? y इज इक्वल टू -2 इज दिस पॉइंट which will intersect the line and curve. So that is my answer here, and the answer here is 65. So that would be the answer for 65. By drawing suitable lines, solve this equation. First of all, mera beta, can you please see that suitable line? You have to remember the question as well. Got it, everybody? Yes or no? यस सर। Cos 2x with 120 is equals to 80 minus x. Okay, according to the question, I have cos 2x in the question. I can see that I need 3 only. So I will divide by 40 here in order to get this number as 3. Yes or no? So this would be cos 2x, which would be equals to 80 minus x divided by 40. Now the left hand side is equals to y, which is 80 minus x divided by 40. Let me open it. Y is equals to minus x by 40 plus 80 by 40. So 80 by 40 is 2 or not? Minus x divided by 40 plus 2. So 2 is my y intercept, which is y is equals to mx plus c होता है ना बेटा? Okay, सिर्फ to 40 draw, कहाँ से आया? 40? क्या है 40 कहाँ से आया? बेटा? हमें यहाँ पे 3 चाहिए था ना, cos 2x के साथ 3 लगा हुआ है, तो 120 को 40 पे डिवाइड करूंगा तभी 3 आएगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, तभी मैंने 40 लिख दिया यहाँ पे। बेटा टू ड्रॉ लाइन वी नीड अ टेबल, हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। वी नो दिस ऑलरेडी। तो हम लोग एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं, और ऑलरेडी आपको पता है कि वाई इंटरसेप्ट सी है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा इस तरह करवा रहा हूँ। ओके, एक्स की जगह पे वैल्यूज़ डालेंगे ताकि हमारे पास वाई के जवाब आएँ। तो जब मैं एक्स की जगह पे बेटा 0 डालूंगा तो वाई मेरे पास 2 आ जाएगा। और आप ऊपर देखें एक्स की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो मैं एक्स की जगह पे 40 डाल देता हूँ ताकि 40/40 कट जाए। एक्स इज इक्वल टू 40। तो जब मैं 40 डालूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, मतलब y इज इक्वल टू 1। सो 0, 2 and 41, x is 0, y is 2, and 40 and 1, so 40 and 1 would be this line. Yes or no? So let's join this line. हमें इस लाइन को ज्वाइन करना है with the help of a scale. ये स्केल है आपका। सर यो एक्स बाय 40 प्लस 2 के बाद आपने कैसे किया? क्या चीज? एक्स बाय 40 प्लस 2 के स्टेप्स के बाद बेटा 40/40 कट गया ना, टेबल तो में डाल दिया -1 आया सर। ना। -1 आ गया, -1 प्लस 2 किया तो +1 आ गया, तो टेबल में +1 लिख दिया ना, जी सर। और ऊपर प्लॉट कर दिया है। और प्लॉट करने के बाद बस अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारी वो सूटेबल लाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जी सर। तो ये लाइन लगा दी है मैंने। सो इस लाइन तो को ये आपका एक्सटेंड ग्राफ करना भी है ठीक पूरे। नहीं है। जी? आपका ग्राफ ठीक नहीं है, मार्क्स क्यों? कटेंगे। क्यों? लाइन गलत बनाए सर जी। क्यों लाइन? बस ठीक है यार, समझ आ रही है तुम्हें कि बन गई है ना, बस ठीक है ना। क्यों? दोनों पॉइंट क्रॉस किया है ना मैंने। जी सर। वो नीचे वाले में सर जी अपने स्टेप्स डालें। किधर वो डालें? लेफ्ट। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरे पास जूम इन जूम आउट का मसला है ना। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख लें। ठीक है जी। द डायग्राम शोज अ शेप मेड फ्रॉम अ मेजर सेक्टर AOB and a triangle OBC and AOD. Show that angle BOC is 19.5, 19.5। तो BOC बेटा ये एंगल है, BOC is this angle। तो ये शो करना है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बाहर निकाल देंगे। कभी भी क्वेश्चन को देख कर नहीं छोड़ना, ट्राई करना। आसान था, देखो ये भी। 2, 6, ये एंगल निकालना है। दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। साइन में होता है हमारे पास। सो साइन O इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस।
So O would be equals to sine inverse of 2 by 6. So shift sine inverse 2 by 6. Beta, how many participants are there in the class? सर जी 22. 23. Okay. So angle O would be equals to 19.50. So 19.5 till one decimal place shown. So let me write 19.5 here. Okay. Now calculate the area of the major sector. Beta, major sector के लिए I need the radius, and the radius will be from this triangle. Agree or not? Let's find out the radius first. हमाद आवाज आ रही है बेटा, सुन रहे हो कि नहीं? Radius तो 6 है पहले से. क्या चीज? Sir, radius तो पहले से 6 है. Very good यार, radius 6 available है. Sorry, O to B is also a radius. So radius is equals to 6. Thanks Safia, saved our time. ये भी 6 centimeter is the radius. Okay, कौन B से और वाले C is हमाद not. की आप बात कर रहे हैं सर जी? जी बेटा, कौन से हमाद की आप बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा था. ओके ओके. आवाज नहीं आई ना बड़ी देर से. ओके, कैलकुलेट द मेजर सेक्टर AOB. बेटा मेजर सेक्टर AOB कौन सा है, जरा गौर करना. AOB मेजर ऊपर वाला है. इज दिस क्लियर? जी Is सर this जी. clear or not? मेरी बस They are माइक talking बंद कर about दो, this आप one. मेरा नाम नहीं लेते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल है, तो ये एंगल निकाल लें. 180 माइनस 135 माइनस 19.5. ये एंगल कितना आता है बेटा, ये पहले बताओ. 360, सॉरी यार, 205.5. एक ये हमें मिनट कैसे एक पता मिनट. कि ये 180 है? ये तो थोड़ा ये कर्व है. सॉरी, ये 360 से माइनस करना है एंगल एट अ पॉइंट. हाँ ना सर. 360 माइनस 130. बेटा मेरा भी बस हो गई है ना, मैं भी बेटा सुबह 8 बजे का पढ़ा रहा हूँ अभी तक. नहीं सर जी, बस मैं नहीं मानता. ना मानो. 360 माइनस 135 माइनस 19.5. ये बाकी जितने बैठे हैं इनकी सुबह भी मेरे से मुलाकात हुई है, सुबह भी इनका मैंने दिमाग खाया हुआ है. सो थीटा डिवाइडेड बाय 360, 205.5 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, एंड आर इज 6. सो डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय 360 multiply by pi, shift and pi, r square is 6 square. So the answer is this much. Press S and D. So the answer is 64.55. Three significant figure. So after this is 5. So 64.6 centimeter square is the area. Oof. C is the midpoint of OD. C is the midpoint of OD. O to D का midpoint है C. Okay, C is the midpoint of OD. Okay, so let's find out OC first. तो हमें पता तो लगे कि ये है कितना. Find OC. Finding OC. OC is equals to question mark, but I'm talking about this triangle. So this is the hypotenuse. So means that 6 square is equals to 2 square, and this would be x plus x square. So 6 square minus 2 square is equals to x square. So x is equals to square root of 6 square minus 2 square. तो ये कितना आता है बेटा, जरा बताइएगा. 36 माइनस 4 सर जी. 5.7. मुझे पता है 32 होता है. स्क्वायर रूट 32 क्या आता है ये बताओ. 5.65. 5.45. कितना आ रहा है? 5.656865. अच्छा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं ये 4 स्क्वायर रूट 2 लिखूंगा. क्या लिखूंगा? क्योंकि पॉइंट हमें डिस्टर्ब करेगा क्वेश्चन में. तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, सर तो ये भी होगा 4 स्क्वायर रूट 2. ठीक है. जी सर. ओके, एग्जामिनर क्या कह रहा है? कैलकुलेट AD. हमें A to D को फाइंड आउट करना है, तो इस ट्राइंगल को आउट करना पड़ेगा. किस ट्राइंगल को आउट करना पड़ेगा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सर मैं जी वो इस एक बंदे ट्राइंगल. को आपकी आवाज क्लियर नहीं है. बेटा आप किसको, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हसन नासिर. बेटा इसको तो मैं क्लास से दिल चाहता है कि निकल के लगाऊं. सारे पाकिस्तान को मेरी आवाज क्लियर आ रही है. इधर कतर तक मेरी आवाज जा रही है. इधर बैठे हुए हैं कतर वाले बच्चे भी बैठे हैं, और दुबई वाले बच्चे भी सुन रहे हैं. तुम्हें आवाज आ रही है मेरी क्लियर कि नहीं? सर जी मुझे भी क्लियर आ रही है. ए सर ओ जी अब सर मुझे भी आ रही भी है. क्लियर हो गई सर जी, वो नेट का. तो बेटा तुम्हारा मसला था ना यार, मैं क्या करूं यार. तुमने क्या टिकटॉक वाला नेट लगाया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ. AO और D. AOD. बेटा OD आया 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2. बेटा इनको जरा ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर में. प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, देखते हैं कि क्या आता है. ये आ रहा है 8 स्क्वायर रूट 2. यहाँ पे हम लिखेंगे 8 स्क्वायर रूट 2.
बेटा ए ओ सफिया ने पहले ही बता दिया था कि ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। सो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके एंगल ओ है 135। ओके स्मॉल ओ नहीं है बेटा, कोसाइन रूल लगेगा। किसी को कोई शक है? नो सर। चलो जी, तो ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट 8 स्क्वायर रूट 2 कॉस ऑफ 135 था मेरे ख्याल से। यस, सो ओ स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू, कैलकुलेटर सर की ये गेम। कोसाइन रूल है। नहीं बेटा, ये मैं घर से लेकर आया हूँ। जी सर। अजीबा सवाल किए यार। सर जी बस मैं पूरा, माइक बंद करता हूँ, मैं नाराज हो गया। बस अल्लाह तुम्हें खुश करे बेटा। जी सर। ब्रैकेट ब्रैकेट आमीन। 8 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट बंद करने में ख्याल करना है। कॉस ऑफ 135 ब्रैकेट क्लोज, सो द आंसर इज 260। स्क्वायर रूट ले लेंगे मेरा बेटा, तो ओ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट आंसर। हम आज समझ आइए, 2 स्क्वायर रूट 65 आ रहा है, एस एंड डी दबाएंगे। यस सर। 16.1 आ रहा है बेटा आंसर, 16.1। कहता है कैलकुलेटेड टोटल एरिया ऑफ द शेप। जबरदस्त। एरिया ऑफ द शेप, नो बेटा, एरिया ऑफ द शेप के लिए हमें चाहिए पहले एरिया ऑफ द, ये येलो वाला हम निकाल चुके हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमें पता है बेस इनटू हाइट होता है, एग्री और नॉट? सो यस मेजर सर। सेक्टर, मेजर सेक्टर हमारे पास मौजूद है। 6 होगा सर जी, 1/2 एक बेस मिनट, इंटू। एक मिनट, मेजर सेक्टर का एरिया था 64.6, वो लिख देंगे। अब लिखेंगे रैट। रैट होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बेस 2 है और हाइट ऑफ द जो आ रही थी वो हमारे पास 6 फोर है स्क्वायर मेरे रूट ख्याल टू आ से। रही है। 4 स्क्वायर रूट 2 आ रही है, तो ये एरिया कितना आ रहा है बेटा, ये इसका बता दो रैट का। 2 कट गया, अब 4 स्क्वायर रूट 2 ही आ रहा है, एग्री? ओके, नॉट रैट ये ऊपर लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड, यस और नो? 1/2 यस मल्टीप्लाई बाय सर। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 135। बेटा ये तीसरा एरिया बताना है यार। 64.6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तीसरा क्या आ रहा है जरा बताओ जल्दी। प्लस, मानो मुझे 20, खुद ही कर, कितना आ रहा है मिनाइल? 24। एग्जैक्ट? जी सर। यस सर। ओके, सो 94.25, तो हम लिखेंगे 94। ओ ओके 24 आ रहा था, सो 94.3 लिख देंगे। सर जी 4 वो आपने मार्क्स। सर का मिस कर लिया। क्या मिस किया बेटा? वो 205 जो आया था, बेटा वो एंगल था, तो उसका एरिया एरिया तो नहीं निकालना। ये निकाला हुआ है ना बेटा, एक दफा निकाल लिया ना, दूसरी दफा क्यों निकालूं? जी सर। 4 नंबर है। Sector of a circle has a radius 8 centimeter and area 160. A mathematically similar circle has a area 20. Find the area of the larger. Okay, एक सेक्टर बनाते हैं, एक दूसरा सेक्टर बनाते हैं। ओके, a sector has a area radius 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस है और बेटा इसका एरिया है 160। इसका एरिया वी नीड टू फाइंड and the radius is 20. So beta we have the formula that A1 divided by A2 is equals to L1 divided by L2 whole square. This is unknown, so A1 L1, L2 A2. Plot values correctly. A1 divided by A2 160, L1 divided by L2 20 divided by 8 whole square. 160 will go there. So A1 is equals to 20 square divided by 8 square multiplied by 160. क्या आता है बेटा? 1000। 1000 आ रहा है बेटा, तो the answer is logically correct. इसका एरिया ज्यादा होना चाहिए था। ओके जी, look at this question. This question is from 05804 to October November 23. So the diagram shows a right angle triangle value of W. Okay, मेरा बेटा value of W हम लोग कैसे find out करेंगे? First of all we need to understand this thing.
And the question is for how many marks? 7 marks question. 7 marks है Okay. सर जी। None of the side is available. Agree? Only one side is available and other two sides are not available. And I have only one formula having 3 right angle triangle side, which is Pythagoras theorem. Do you agree with me or not? जी सर। Yes. So hypotenuse is 2t बेटा बना लिए सुनो ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है क्योंकि IGCSE के पेपर में आ गया था मेरा गैस है कि आना चाहिए मई जून में बेस स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टी स्क्वायर। बट बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन होगी a माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली और अगर आप लोग आइडेंटिटी ओपन नहीं करना चाहते तो आप लोग रफ वर्किंग में 2t प्लस 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लें ठीक है ये अलजबरा है मुझे अलजेब्रा नहीं आता ना। तो 2t इंटू पहले 2t ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 3 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 3 सो 2 4 t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6t प्लस 9 सो 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9 तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर दोनों को इधर ले जाते हैं क्वाड्रेटिक बनेगा और कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे प्लस 12t प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 5 स्क्वायर 25 होता है ठीक है सो 3t स्क्वायर plus 12t plus minus is minus that is minus 16 is equals to 0 nothing is common we have to proceed the question using quadratic formula x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a minus b beta b value is 12 plus minus square root 12 square minus 4a is 3 and c is negative 16 whole divided by 2 a is 3 सर जी x हम is सिर्फ पी equals to की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। हाँ जी तो मोड दबा के हम लोग इक्वेशन देख लेंगे मेरे कैलकुलेटर में ए पर है आपकी कोई कैलकुलेटर में 5 पे भी हो सकती है ए इट्स अ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 वैल्यू ऑफ ए इज 3 वैल्यू ऑफ बी इज 12 वैल्यू ऑफ सी इज नेगेटिव 16 वैल्यू सही प्लॉट करना आंसर गलत आएंगे वरना x1 is negative 16 and x1 is negative 16 and x2 is minus 5 point यार ये क्या आ गया सब करें जरा 3 12 minus 16 x1 आया है 1.05 x1 is बेटा आप लोगों के पास क्या है सर जी हमने नहीं किया, आपने कर दिया। Minus 5.05. ओके सर जी सही किया। बेटा लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव सो आई विल क्रॉस नहीं दिस वन मैंने आई विल 5.06 नहीं होगा क्योंकि 5 के बाद दूसरा 5 बेटा नहीं वो है। ऐसे भी क्रॉस कर आपने देंगे सही ऐसे ही क्रॉस किया। कर देंगे उसका वैल्यू नहीं है हमारे लिए ठीक है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव लेंथ कैन नॉट बी नहीं सर आपने वो x1 भी 1.05 किए तो वो 1.06 राउंड ऑफ नहीं अच्छा होगा। मैं देख लेता हूँ यस 1.06 पे राउंड ऑफ कर देंगे इसको वेल डन सफिया गुड जॉब ओके सो हमने टी निकाल लिया है तो हम यहाँ पे ज़रा ये 1.05 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.06 ब्रैकेट प्लस 3 सो 2 मल्टीप्लाई बाय मोड 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1.06 प्लस 3 so the answer is 5 point तो इसका मतलब है this thing is equals to 5.12 and this एंड ये is दूसरा 1.06। 1.06 okay now I can find out w by any one ठीक है तीनों sides available हैं so that is perpendicular and this is hypotenuse sine is fine sine w would be is equals to perpendicular which is 1.06 and hypotenuse is 5.12 so w would be equals to sine inverse of 1.06 divided by 5.12 so w is equals to what beta shift sine inverse 1.06 divided by 5.12 11.94 11.98 आ रहा है मेरे पास तो 94 आ रहा है W सर, 1 94। 12 हो जाएगा सर जी, 12.0। नहीं 94 आ रहा है ठीक है कैलकुलेटर पे 94 लिखा हुआ है तो 11.9 डिग्रीज वुड बी द 948 है आंसर ना सर जी, तो वो 95 बन जाएगा ना। शायद बेटा मेरे मुंह से भी कुछ कुफर निकालते हो 11.94 तो थर्ड सिग्निफिकेंट इज 9 9 के बाद 4 लिखा है इट इज लेस देन 5 जी सर।
ठीक हो गया? ट्राई करना सर, बेटा सर क्वेश्चन। के बाद 8 है ना, वो 5 नहीं जी बन जाएगा 4। सर बेटा हमें कैसे 4 पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है? मेरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे ना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपके सामने। जी है। ये क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखी हुई है। इज दिस क्लियर और नॉट बच्चा? समझ आइए यस सबको? सर, जी आ गई। Yes, sir. मेरा बेटा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। बस और कुछ भी नहीं, मेरे लिए दुआ करो। और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग क्लास विद मी। हैव अ गुड डे। Allah Hafiz. Sir.